तो बेसिकली जब भी मैं बात करता हूँ, whenever I used to discuss about astrology or vastu shastra, I always try to convey you the very basic message, that the message is all about the connectivity, right? The connectivity between vastu shastra and astrology. And the most important thing ये is, बेटी चला बेटे टेंशन। Ashita ma'am, please off your mic. Yeah. So I was just saying that most important thing is here we have to understand few important factors. In Vastu, there are 5 elements. Okay. But when we talk about, balancing of 5 elements, that is being done where? In the direction and sub-directions, right? When we are playing around direction and sub-directions, when we are working over there, we are trying to balance them. What we tend to balance? Our intention is to balance 5 elements. And how that balance of 5 elements will give the effects? How? That will help us to balance Rajas, Tamas, Sattva indirectly, or in the language of Ayurveda, I would also say Vat, Pitta, and Kapha. If any one of you having some kind of issues, also probably we can detect from there also like which zone is disturbed. And sometimes the point is this: here we have to understand when a planet is disturbed, that zone deliberately is tend to be giving bad results. So we have to understand this. So directions के बारे में तो we have already understood के east, west, north, south is there. Then we are also in my workshops only at the very basic. Otherwise nobody talks about the zone. But in my workshops only I talk about zones also. I clarify you 16 zones, right? But why I am sharing that 16 zones? Reason being, those zones are regions. 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 Okay, where in a specific region, when an element is disturbed, that means what is happening? That means accordingly it will affect in terms of Ayurveda, where Vat, Pitta, and Kapha. This is I'm just touching the little bit medical astrology part also. Okay, because most of the people, when they feel affected in terms of their health, when their health is disturbed, that means we have to see which zone is disturbed specifically. And when you spoke about planets, definitely when you talk about a particular disease, I will tell you that this planet is distorted. Suppose if you're talking me that, sir, we are having problem related to surgeries, okay, then I would probably say in your horoscope Mars might be disturbed. Okay, and in which organ it is giving you surgery, further we have to identify that. So this is how that we will identify it with the Vastu Purush organs. Those zones will be disturbed. So there are two factors, from where we will capture these things. Guys, I hope you are getting सब ऊपर से नहीं जा रहा, बताइए समझ आ रही है बातें? It is very simple ना, बहुत simple है. एलिमेंट को बैलेंस करना है, ठीक है, प्लेनेट का रेमेडी करना है, सिंपल है. दोनों में से एक करोगे तो भी चलेगा, मतलब इट विल गेट द रिजल्ट्स. बट द पॉइंट इज दिस कि एस्ट्रो और वास्तु को अगर आप दोनों को कॉम्प्रिहेंसिवली हैंडल करते हो तो आपकी हैंडलिंग इजी हो जाती है. समटाइम्स देयर आर वेरिएबल और नॉन वेरिएबल फैक्टर्स. तो जब आप वास्तु में किसी नॉन वेरिएबल फैक्टर को बोलोगे, आप किसी को बोलोगे जाके अपना टॉयलेट तोड़ दो, तो वो कहेगा भाई साहब आपको पैसे क्यों दिए हमने. पॉइंट इज दिस. यहाँ पर अब क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी एनीवेयर, ठीक है ना, साउथ ईस्ट में भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम कलर थेरेपी को यूज कर जाते हैं. अभी कलर थेरेपी में जैसे मैंने आपको बताया, आप देखिए ये बात बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है. बस मेरे को पूर्णिमा जी एंड अशोक जी 2 मिनट दीजिए, मैं कुछ बेसिक क्लैरिटी दूं, ताकि हफ्ते भर से माइंड ऑफ पड़ा है था सबका. सही है, सही हिलाना पड़ेगा माइंड पूरा, हिला के एक बार सिंक कर देता हूँ, फिर समझ पाएंगे सारे, ठीक है ना. तो देखिए सबसे पहले जल होता है, जल जीवन, ठीक है ना. थोड़ा सा जल जब आप आगे बढ़ते हैं, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन है, आप इसको समझिए. जल जो है वनस्पति को लाता है, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति यानी वुड इनडायरेक्टली, ठीक है ना. वो वुड या वनस्पति क्या करती है, वो, ठीक है, वो लैंड को फाड़ती है, आर यू गेटिंग में, उसको फाड़ के वनस्पति आती है.
आप समझ रहे हैं? तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वुड आएगा एज अ रिजल्ट। पानी के रिजल्ट से क्या हुआ? वनस्पति आई, वनस्पति के रिजल्ट से लकड़ी आई, लकड़ी के रिजल्ट से क्या आएगा? फायर। लकड़ी के बिना आप आग नहीं लगा सकते। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द साइकिल। और जैसे ही आपके पास जब वुड का एलिमेंट आया तो वहां पर फायर आया, उसके बाद वुड से फायर जलती है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और जब फायर होती है, फायर क्या करती है? फिर से तहस नहस कर देती है। जैसी फायर जलती है तो वो वुड का, अगर उल्टी चलेगी तो वो वुड को खत्म कर देगी। ठीक है ना। ये साइकिल इस तरह से भी चलेगा। जल, ओके, वाटर, देन वुड, और आई वुड से वनस्पति। ठीक है। वनस्पति के बाद फायर, फायर के बाद आएगा आपका अर्थ। क्योंकि जब फायर ने सब कुछ जला के तहस नहस कर दिया तो फाइनली क्या बचा? जमीन। जमीन बच जाती है। तो दिस इज हाउ अर्थ कम एंड लेटर द स्काई एलिमेंट। स्काई मतलब स्पेस बोल देता हूँ मैं, स्पेस या मेटल भी बोल सकते हैं। तो अब मेटल जो है उसको कौन ध्वस्त करता है? ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं ये सारे के सारे। ये सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, और एक दूसरे से, अगर जो आप देखोगे, एक दूसरे को ये ध्वस्त भी करते हैं। अब मेटल को कौन ध्वस्त करता है? कौन खत्म करता है? बताइए। व्हाट इज योर सेंस? ये देखो, ये होना चाहिए एज अ वास्तु स्टूडेंट, एज एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी समझ नहीं खोलोगे तो दिमाग कभी चलेगा नहीं। ठीक है ना। लोहे को गलाने के लिए क्या यूज करते हो आप? या किसी भी मेटल को, सुनार क्या यूज करता है? सुनार हो, लोहार हो, क्या यूज करता है? अग्नि। अग्नि, अग्नि सर। हाँ। तो दिस इज हाउ यू हैव टू ओपन अप योर माइंड। Even तक a person is talking to you, in the way he is talking to you, you should understand the element of that person. अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको बोलने के तरीके से उसके एलिमेंट समझ आएंगे। कुछ लोग धीरे बोलेंगे, रुक रुक के बिल्कुल सोच के बोलेंगे, अर्थ एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है ना। कुछ लोगों का अगर अर्थ थोड़ा सा कम हुआ, एयर ज्यादा हुआ, तो उनके पास नॉलेज ज्यादा है। ठीक है ना। अब नॉलेज के अंदर थोड़ी सी अग्नि आ गई तो उसमें स्पीड आ जाएगी बोलने की। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू। अग्नि क्या करती है? अग्नि ड्राइव करती है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल ना डला, आग ना जली पिस्टन के अंदर, तो गाड़ी आगे मूव करेगी नहीं। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे हमारी लैंग्वेज में एस्ट्रोलॉजिकली, तो शनि का काम मंगल के बिना नहीं चलता, मंगल का काम शनि के बिना नहीं चलता। बट दे हार्म ईच अदर समटाइम्स, कभी कभी वो एक दूसरे का नुकसान कर भी देते हैं। व्हाई? रीजन बीइंग व्हेन दे आर नॉट इन द ऑस्पिशियस राशिज इन द। तो यहाँ पर तो आपके जोन्स हैं, वो रीजन्स हैं वास्तु में। बट कुंडली में क्या होगा? ठीक है ना। कुंडली में क्या होगा? कुंडली के अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। मैं आपको ना भी एलिमेंट्स की पिक्चर के साथ दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जस्ट अ मिनट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, कि कुंडली के अंदर जो राशिस होती है ना, राशिस, जो हमको लगन साइन के अंदर आपको राशि बोलता हूँ मैं, राइट। वो राशि जो होती है वो रीजन होता है। अब जब उस रीजन के अंदर ऑस्पिशियस, मतलब कोई भी प्लेनेट आया, आइदर वो ऑस्पिशियस हो जाएगा, आइदर वो अनऑस्पिशियस हो जाएगा। यही आपको बताया है, आइदर वो उच्च का हो जाता है, आइदर नीच का हो जाता है, या फिर शत्रु क्षेत्रीय हो जाता है। मतलब थोड़ा सा उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हुई। और अगर मित्र की राशि में आया तो थोड़ा सा अच्छा हो गया, और अगर बहुत अच्छी बिल्कुल एग्जैक्ट मित्र की राशि में आ गया तो उच्च का हो गया, एक्सॉल्टेड हो गया। तो एक्सॉल्टेशन डेबिलेशन आपको सिखाए हैं लास्ट लेक्चर में, जिनके साथ मैं फर्स्ट लेक्चर भी अभी कंप्लीट कर चुका हूँ। एक्सॉल्शन डेबिलेशन मैंने आपको बताया थे सबको, तो इसलिए मैं वो थोड़ा सा टच कर रहा हूँ। एक्सॉल्शन एंड डेबिलेशन को आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर रीजन में जब जब गड़बड़ होगा, तब तब मतलब देयर विल बी इश्यूज अराउंड योर हेल्थ, इश्यूज अराउंड योर मेंटल। किसी की फ्रेंड की भी हेल्प कर दोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। दुआ मिलेगी भाई। आपको दुआ भी तो कमानी है, सब कुछ पैसा नहीं होता। ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर पब्लिक में बात करने का आपको, अगर कहते हैं ना, इंटरेस्ट नहीं है, तो दिस इज अ रॉन्ग। आपके पास होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर ऐसी लाइफ का फायदा है क्या मेरे हिसाब से? यू शुड हैव कॉन्फिडेंस टू फेस द थिंग्स। व्हाई आर यू हिडन? क्यों? या तो गड़बड़ कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। और जब चोरी नहीं कर रहे तो आंखों में आंखें डाल के बैठो, जैसे ग्रह बैठता है 180 डिग्री। आई टू आई कॉन्टेक्ट होगा तब बात बनेगी, अदरवाइज रिलेशनशिप नहीं बनेगा कभी। सिंपल सी बात है। आई टू आई कॉन्टेक्ट करने का दम होना चाहिए भाई। इफ यू आर नॉट रॉन्ग, व्हाट इज द हार्म? टेल मी। एंड देन इफ यू आर रॉन्ग, देन तो कोई इश्यूज ही नहीं है, देन तो मजे मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आई हैव नो इश्यूज। अच्छा, मैं आपको ये एक बात ये भी बोलना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है
कि आपको ये बात समझना है कि हमारे को ना इस पूरे जो ये जो आप नॉलेज डोमेन को जो कैप्चर कर रहे हो ना, ये एक्चुअली आप अपने इस माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर दो कि ये आपका थ्योरेटिकल वर्क करेगा, ये आपका थ्योरी में काम नहीं करेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो आपका, चाहे आपका ये वास्तुशास्त्र का नॉलेज हो, इट विल नॉट हेल्प यू till the time you are not resolving the life problems of your own house, life problems of your own life। अगर आप उनको प्रॉब्लम मानते हो किसी भी, देखो हर मेंटल स्टेट की अलग बात है। कोई आदमी अब क्या बोलता है मैं फकीर हूँ, मैं फकीर ही अच्छा हूँ, तो वो भी एक मेंटल स्टेट है, फिर उसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी बोलता है कि मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, तो वो उसके लिए फिर उसको लाना है, तो फिर कैसे, हाउ। ठीक है, एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, बट वही बात है, बैलेंस तो प्रोनाउंस करना ही पड़ेगा, राइट।